So now I am going to show you the very basic difference between the analog and digital. Okay. सर Yeah. हेलो सर बोलो। सर बोले कि सर जो वाईफाई होता है वो सर एनालॉग है या डिजिटल? These are all digital. सर डिजिटल है। Yeah. ओके सर। More participants are still joining. Okay. So now we'll see the difference one by one. There are so many difference between analog and digital. Okay. So in analog, always maximum of times there will be some movable part in that particular analog type of machine or device. But in digital, there is no any movable parts. है ना? So one by one, we will see the differences between these two type of things. So in analog, measurement of the output information is shown by a pointer. In maximum of time, you will see that this type of thing is there. But in digital, there is no any such type of things. There will be some digits which will give the measurement of that particular measurement. So this type of present in this type of analog devices, moving parts are involved, but in this case, there is no presence of any movable part. Possibility of human error exists here, but in this case, there will be no such type of errors present. Type of instrument, the instrument construction is like a simple direct handling type and can perform in unfavorable conditions. So अगर कंडीशंस कुछ अनफेवरेबल भी हो, जैसे हवा ज़्यादा हो या टेम्परेचर ज़्यादा हो, in that case also the analog devices may work properly, but for digital devices the conditions should be favorable for that particular digital device, otherwise it will not work. So rate of changes in the output quantity is decided by seeing needle movement, but in this case there is no any change in the output quantity. यहाँ पर क्या हो सकता है, due to some in case of analog device, due to movement of some movable parts, there will be some variation in the measurement, but in this case there will be very less chance. It will give less resolution, it will give more resolution. Again, more time to observe the reading. It requires more time to observe the reading, and it takes less time to observe the reading because it gives a particular uh, um, value of the observation. Now you can see these type of various differences. The analog instrument is cheap in cost, but the digital instrument is expensive. Instrument, there is no use of batteries, requirement of battery. Maybe there is a requirement of batteries. Type of measuring instrument is extremely portable, but in this case, may not easily be portable. Error because output depends on movement of pointer. यहाँ पर इसलिए error आ सकता है, but digital में movable part नहीं होने के कारण the value is fixed, remains fixed. Okay. Analog instruments are reading output quantity is difficult compared to digital measurement. यहाँ पर रीडिंग डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि निडल जो है वो वाइब्रेट कर सकता है इन दैट केस, बट हियर दिस में नॉट बी देयर. सो
You can see the speedometer of an automobile, fuel gauge, voltmeter, ammeter, thermometer. These are all are the examples of analog devices, and digital voltmeters, ammeters, maximum type of digital watches, mobile phones, laptops. There are so many uh, different types of digital and analog devices are there. So by showing the by seeing all around you, you can see multiple types of analog and digital devices present around you. Now, what we have to do here in this course, we have to study the basic digital electronics and logic design, so that the students can design some smaller type of circuits or devices by after studying this course. इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप एक छोटे लेवल में या थोड़े हायर लेवल में भी कुछ सर्किट्स डिजाइन कर सकते हो. सो अभी जो रिक्वायरमेंट है वो डिजिटल डिवाइसेस का है, और हम लोग देख रहे हैं कि समय के साथ क्या हो रहा है, डिजिटल डिवाइसेस आर बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. सो ये किसके कारण हो रहा है? ये हो रहा है ड्यू टू वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो बहुत ही छोटे हो सकते हैं और बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करके हमारे काम को पूरा कर सकते हैं. बट एनालॉग डिवाइसेस में क्या होता है कि जो फिजिकल उनका अपीयरेंस होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, वो ज़्यादा जगह लेते हैं. सो इसीलिए हम डिजिटल को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं. Okay, now according to syllabus, we have to go through the first portion of the syllabus, like number system. Now I will take the help of my mobile so that please wait for a minute so that I will connect my mobile. Please wait for a minute. Yeah. So am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
So are you able to see my copy? Yes, sir. Yes, sir. So is it visible clearly? Yes, sir. Okay. So if the text is not visible, then please tell me. Visible, sir. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what we have to study now is the simple binary number system. In number system, we have to study, is there echo? No, sir. Okay. So in number system, we have to study binary number system. I think all of you know the decimal number system. Octal, hexadecimal. We have to study all these number systems. So I think all of you know this decimal number system. In decimal number system, what you see, if you want to write this 192 in expanded form, then how you will write? जब बचपन में ये चीज क्लास आई थिंक 1 2 या 3 में ये चीज हम लोग करते ही हैं कि ये जो नंबर है इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में जब लिखना होता है तब हम क्या देखते हैं कि ये जो डिजिट है वो वंस प्लेस का होता है, ये डिजिट टेंस प्लेस का होता है और ये डिजिट हंड्रेड्स इसका प्लेस वैल्यू होता है। मीन्स इसको क्या करते हैं 10 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, इसको हम लिखते हैं कैसे, जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो 1 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 0। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम ऐसे ही लिखते हैं, बचपन से ये चीज हम लोग देखे हैं। और जब इनको हम ऐड अप करते हैं देन वी विल गेट दिस 192, है ना। इन द सेम वे तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं, क्या क्या होती है, बेस और रेडिक्स। तो कह सकते हैं हम इन जनरल any number with radix or base x having m digits
to the left and digits to the right of the decimal point can be expressed as a subscript m x to the power m minus 1 plus a subscript m minus 1 x to the power m minus 2 plus dot 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 plus a2 x to the power 1 plus a1 x to the power 0. इसके बाद क्या है डॉट डेसिमल दिस डेसिमल प्लस b1 x to the power minus 1 plus b2 x to the power minus 2 plus bn x to the power minus n. तो यहाँ पर यहाँ पर एक्चुअली कहा क्या गया, इन जनरल एनी नंबर विथ रेडिक्स और बेस एक्स. जैसे यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो इस डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस वैल्यू है वो क्या है, बेस वैल्यू है 10. इन केस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम द बेस वैल्यू इज 10. मतलब बेस वैल्यू यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस है वो क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. तो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, जो सारे नंबर्स होते हैं वो सिर्फ इन्हीं से मिलकर बने होते हैं, है ना. बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बेस है वो क्या है, वो है बेस 2, मतलब 0 और 1. ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या है, बेस वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. सो अ टोटल ऑफ 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 से लेकर 7 तक. So in octal number system the base value is 8. हेक्साडेसिमल मतलब क्या होता है, 16, यानी कि इसका बेस वैल्यू क्या होगा, 16. 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी 9 के बाद A, B, C, D, E एंड F. तो टोटल कितने हो गए, 1 से लेकर 9 तक, मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. सो अ टोटल ऑफ 16 points are there. So in hexadecimal number system the base value is 16. In octal number system the base value is 8. In binary number system the base value is 0, 1, and in decimal number system the base value is 10, that is 0 to 9. तो अब किसी भी एक नंबर सिस्टम को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इनका वैल्यूज डालकर हम चेक भी कर सकते हैं दैट am उसका क्या है, ये m डिजिट्स टू द लेफ्ट. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लें, 185.923. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, हैविंग m डिजिट्स टू द लेफ्ट एंड n डिजिट्स टू द राइट.
तो यहाँ पर m इज इक्वल टू कितना है 3 और n इज इक्वल टू कितना है, ये भी 3 है, यहाँ पर 4 कर देते हैं। ओके 1 n को 4 कर दे रहे हैं, सो दैट we can differentiate the value of m and n. So based on this value of m and n, हम यहाँ पर जब वैल्यूज पुट करेंगे और उसको जब एक्सपेंड करेंगे, देन वी विल गेट दिस वैल्यू। यहाँ पर a और b क्या है, a और b ये सारे वैल्यूज हैं 1, 8 एंड 5। दिस इज सो m इज इक्वल टू 3 है, तो सबसे लास्ट सबसे मैक्सिमम वाला जो वैल्यू है उसका जो पावर है वो क्या है m-1। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू 3 है अगर, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि ये क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन है, तब हम क्या लिख सकते हैं, दिस am इज नथिंग बट 1 इंटू x इज व्हाट द बेस। यहाँ पर लिखा गया क्या, रेडिक्स और बेस x, जिसका कि बेस x हो और यहाँ x रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डेसिमल नंबर सिस्टम को। इन दैट केस बेस इज 10 and power is m-1. So what is the value of m here, m is 3, that is 3 minus 1 plus, अब यहाँ क्या है 8 into 10 to the power, m का वैल्यू कितना था 3, so m-1 के बाद यहाँ क्या आ रहा है m-2, so m is 3, so 3 minus 2 that is 1, okay, plus 5 into 10 to the power 3 minus 3. So in this way we can expand the any number system. अगर ये एक अलग एग्जांपल लें, एक दूसरा एग्जांपल लें, I think you can see the next page, the white page. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So अब अगर हम एक ऑक्टल नंबर लिखते हैं, ऑक्टल नंबर जो होता है, ऑक्टल नंबर में जो बेस होते हैं वो 0 to 7 होते हैं, यानी 8 ही बेस होते हैं उसमें। तो उसका अगर कोई एक नंबर लिखें, मान ले 152 और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिखे 8, this 8 represents what, this 8 represents that this number is represented in octal number system. Okay, so यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 3 हैं, so m is equal to 3 हो गया। अब m is equal to 3 होगा तो यहाँ पर पहला डिजिट क्या है 1 है, इनटू, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, what is the value of x here, the value of x is, what is the value of x here, 8. 8. Yeah, because Yes, this sir. is octal number system. So 8 to the power कितना होगा 3 minus 1 plus 5 into 8 to the power 3 minus 2 plus 2 into 8 to the power 3 minus 3. तो अब इसको जब हम ऐड करेंगे we will get the same number. Okay, so in this way we can expand any number system, and if we will add that expanded value we will get the same. Now as we all know, in binary number system there are only 2 base values. Base is 2, that is 0 and 1 only. Now we have to convert a decimal number system to a binary number system. So यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखना है, ये सभी को याद रखना होगा कि 2 का जो पावर्स है, 2 का एक्सपोनेंट्स, उसका वैल्यू याद रखना होगा। ओके,
2 to the power 0 1 होगा हमेशा, 2 to the power 2 सॉरी 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6, 2 to the power 7, 2 to the power 8. Okay, in this way at least you have to remember up to 2 to the power 10. What is the value of 2 to the power 10? What is the value of 2 to the power 10? 1024. Yeah, that's what job is. What is the value of 2 to the power 9? 512. Yeah. So up to this much you should remember. Up to this much you should remember. I think the picture is clear now. It was hazy earlier. So if there will be any problem regarding the picture or voice quality, you can interrupt me in between. Okay. So binary number system, we have already seen that we have two values, only 0 and 1. Now we have to convert a number which is represented in decimal like 25. So this is the decimal representation. We have to convert it into binary. So what is the process? What is the process? So we will follow the divide rule. Okay. So I have written here 25. What I will do, I will divide this 25 by 2 and whatever be the quotient, ये कितने times जाएगा, 25 कितने times जाएगा, 12 times. रिमाइंडर कितना आएगा? So जो भी रिमाइंडर आएगा that will be put here. Okay. यहाँ पर ये जो आएगा वो क्या लिखेंगे हम? Please mute yourself. किनिका unmute है. तुमको चलना है तो ना। अरे लिखना है ना, मेन बात लिखना कॉल पर ऐसे किनिका म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लें. राकेश कुमार दांगी, please mute yourself. Okay, thank you. Okay, so यहाँ पर क्या करेंगे हम? फिर से टाइम आउट होने वाला है. It is requested to you all to please join again. Okay. या तो हम यहाँ क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं. जितने टाइम्स जाएगा द क्वोशंट विल बी रिटन हियर एंड रिमाइंडर विल बी रिटन हियर. तो यहाँ पर जो है ये क्या है, दिस इज क्वोशंट, और जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को हम साइड में लिखेंगे. फिर से हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन 6 टाइम्स कटेगा. इस बार रिमाइंडर 0 बचेगा. हाँ, अगेन फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6, रिमाइंडर फिर से 0 बचेगा तो 0 लिखेंगे. फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट कितना आएगा, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1. तो यहाँ पर हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि इस डिवाइजर से कम यहाँ पर नहीं बचे. सॉरी, जब तक ये कम बचेगा. जब ये कम आ जाएगा, आफ्टर दैट वी विल स्टॉप, बिकॉज अब हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना. नाउ वी विल राइट, जो सबसे लास्ट में 1 आया उसको हम सबसे पहले लिखेंगे. ओके. उसके बाद इस 1 को लिखेंगे, उसके बाद इस 0 को लिखेंगे, उसके बाद इस 0 को लिखेंगे, उसके बाद इस 1 को लिखेंगे.
अब ये जो वैल्यू हमारे पास मिला 11001, दिस इज नथिंग बट द बाइनरी ऑफ दिस 25। ये जो डेसिमल 25 है इसका बाइनरी क्या है, ये 25 का बाइनरी है। सो दिस वे वी विल कन्वर्ट वन डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी। ओके, सो अभी यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या सीखा कि किस तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो इज देयर एनी प्रॉब्लम? सेकंड वन कैसे लिखा है वो समझ नहीं आया। अच्छा आदर्श, सेकंड वन कैसे लिखे हैं? सेकंड वन मतलब ये वाला? यस सर। देखो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर इस साइड क्या लिख रहे हैं, इस 2 से डिवाइड करें इस 3 को तो कितने टाइम्स लगा, 2 1 जा 2, और जो डेसिमल बचा उसे हम यहाँ लिख रहे हैं ना। इन द सेम वे यहाँ पर 1 कैसे आया था? पर डेसिमल वो तो रिमाइंडर था सर। हाँ यहाँ रिमाइंडर था, तो यहाँ भी तो 2 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 लगेगा, रिमाइंडर 1 नहीं बचेगा। अच्छा, इज इट क्लियर? यस सर। जैसे यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा था, 2 से 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टू 24 होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा 25 है। यहाँ पर 2 से जब 12 को डिवाइड किया तो 6 टाइम्स में पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ 0 आएगा, अगेन रिमाइंडर यहाँ 0 आएगा। लेकिन जब 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। ओके, यस सर, क्लियर है ना? वही रिमाइंडर है जो यहाँ पर बचा है, वही यहाँ पर भी है। सो अब यहाँ पर जब इसको फिर से एक्सपेंड करेंगे देन वी विल सी दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू 25। नाउ अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो बाइनरी है 11001, इसको हम क्या करें, डेसिमल में कन्वर्ट करें। इसको हम क्या करें, डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो ये कैसे करेंगे? अभी फिर से टाइम आउट होगा, यू विल हैव टू ज्वाइन अगेन। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास ये जो नंबर सिस्टम है, ये जो नंबर्स है, ये सबसे राइट मोस्ट जो डिजिट है इसको हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, LSB, और सबसे लेफ्ट में जो डिजिट है इसको हम क्या कहते हैं, MSB। LSB का मतलब क्या होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और MSB का मतलब क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, इसका मतलब क्या है, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में हम ऑलरेडी क्या देखे थे, 152 अगर लिखे हैं तो इस 152 में 2 का जो प्लेस वैल्यू है सबसे कम है और 1 का प्लेस वैल्यू सबसे ज़्यादा है। देखने में 1 छोटा है बट इसका प्लेस वैल्यू ज़्यादा है। इन द सेम वे हमेशा राइट साइड में जो राइट मोस्ट बिट होता है, सबसे राइट मोस्ट जो बिट होता है या डिजिट होता है, उसका वैल्यू सबसे कम होता है, और सबसे लेफ्ट में जो डिजिट होता है उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर इस 1 का वैल्यू सबसे ज़्यादा है और इस 1 का वैल्यू सबसे कम है, दोनों 1 ही दिख रहा है, बट लेफ्ट वाले का वैल्यू कम होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो सबसे राइट में होगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। ओके, हमेशा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में जब लिखेंगे तो हम क्या करते हैं, ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, दैट यहाँ पर जो होगा am(x to the power m-1), जहाँ की m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, m है नंबर ऑफ डिजिट्स, लेफ्ट मोस्ट डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो है उसको m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि डेसिमल के
लेफ्ट साइड में है, यहाँ तो डेसिमल नहीं है, यहाँ डेसिमल अगर होता तो यहाँ डेसिमल होता, उसके बाद मेनली कोई वैल्यूज होता। तो यहाँ पर m का वैल्यू 0 1 2 3 4 है, सॉरी 5, 1 2 3 4 5 है। सो यहाँ पर क्या होगा, इस 1 के लिए अगर लिखें तो इस 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू सॉरी 1 into 2 का पावर 4 हाँ 2 टू द पावर व्हाट 5 माइनस 1 दैट इज 2 टू द पावर 4। 5 minus इसको क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 5 माइनस 2 दैट इज 2 टू द पावर 3। इन द Three. सेम वे 2 to the power 2, इसको तो in the same way 2 to the power 1, in the same way 2 to the power 0. अब अगर इसको एक्सपेंड करें then we will write 1 into 2 to the power 4 plus 1 into 2 to the power 3 plus 0 into 2 to the power 2 plus 0 into 2 to the power 1 plus 0 into 2 to the power 0। अब इसको एक्सपेंड करें 2 to the power 4 कितना होता है हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, 16 into 1 16 plus 2 to the power 3 8 8 प्लस 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 0 प्लस 0 0 होगा, प्लस यहाँ लास्ट में क्या था 1 था, सॉरी यहाँ ये 1 था। तो 2 to the power 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 2 to the power 0 का वैल्यू 1 होता है। सो 1 into 1 दैट इज 1। इनको जब ऐड करेंगे तो 16 और 8 24 और 1 25। सो this is the decimal value of this particular binary। okay, so अभी जो हमने देखा है सिर्फ एक discrete value का देखा है, मतलब it doesn't contain any decimal part। अगर decimal part भी होगा तो decimal के बाद हम लोग